So we have done the basics of logarithms and also some basic question we have done in the last session. आज हम कुछ नई चीजें भी पढ़ेंगे और उसके अलावा जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़े से ध्यान देने वाले हैं, हम उसकी तरफ भी एक बार देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जैसे 17 है, ये हमारे पास क्या दिया गया, लॉग ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर so this is a raised to power 4 is equals to a minus b whole raised to power 2x into a plus b raised to power minus 2. Now look at this. हमें बताना है कि सॉरी अगेन यहाँ लॉग नहीं था, हमें लॉग का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो व्हाट वी विल बी डूइंग, सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दिस विल बी रिटन एज a plus this is a square minus 2a square b square plus whole raised to power x minus 1 is equals to this is a minus b whole raised to power 2x into a plus b raised to power minus 2. Now ये हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी ब्रैकेट के अंदर। दिस विल बी रिटन एज a square minus b square whole square whole raised to power x minus 1 is equals to a plus b raised to power minus 2. Then हम इसको इस तरह से लिखेंगे x a square minus b square whole raised to power 2x minus 2 is equals to a minus b whole raised to power 2x this thing can be further written as, अगर हम इसको देखें तो ये आ जाएगा a square minus b square raised to power 2x और जो नेगेटिव पावर है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे a square minus b square raised to power minus 2 is equals to, इसका भी हम लोग जो नेगेटिव पावर है उसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो इट विल बी रिटन एज a plus b raised to power 2. इसको हम ओपन कर सकते हैं। दिस थिंग कैन बी रिटन एज a plus b whole raised to power 2x into a minus b whole raised to power 2x whole divided by, इसको भी हम लिख सकते हैं a plus b raised to power 2 into a minus b raised to power 2 is equals to a minus b raised to power 2x upon a plus b raised to power 2. अब यहाँ पे a minus b raised to power 2x कौन, यहाँ पे a plus b whole square और a plus b whole square कौन, तो हमारे पास बच जाएगा सिर्फ ये a plus b whole raised to power 2x upon a minus b whole square is equals to 1, or we could write it as a plus b whole raised to power 2x is equals to a minus b whole square, or this thing can also be written as a plus b whole raised to power x is equals to a minus b. स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, छोड़ दीजिए उसको।
अब हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी होल रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ a माइनस बी, x log a plus b is equals to log and x is equals to log a minus b upon a plus b. So this gives us the final answer and the value of x. Now another one is like we were having a very small question like this. जस्ट आपको एक चीज बताना चाह रहा था, जैसे क्वेश्चन नंबर 24 है, this is given to us as log plus log 14 upon 3 minus log 22 upon 15. वैसे है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, जस्ट एक चीज इसमें हमने बस समझनी है कि हम इसको ना एक स्टेप में ही इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हम इसको लॉग ऑफ, जहां प्लस है उसको मल्टीप्लीकेशन में लिख देंगे 11 अपॉन 5 इंटू 14 अपॉन 3, और जहां माइनस है उसको हम लोग उल्टा कर देंगे, यानी 15 अपॉन 22। बस यही छोटी सी एक चीज बतानी थी, क्योंकि ये हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे आगे। 5 3 जा 15, 11 2 जा 22, 2 7 जा 14। So we got log of 7 is the answer for us. So this is a very small thing, but yes, ये छोटी छोटी चीजें सीख लें तो कई बार बहुत ज्यादा काम आता है। Let us move to another question. अब क्वेश्चन नंबर 27, this is given to us as log of, अगेन ये भी बहुत इजी है, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हमें हेल्प करेगा टू फाइंड आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। We have to find out the value of log of a square upon bc plus log of b square upon ac plus log of c square upon ab। तो इसको भी हम वन स्टेप में वी कैन राइट इट एज log of a square upon bc into b square upon ac into c square upon ab। So this will be a square into b square into c square all divided by, डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही आएगा, b और b मल्टीप्लाई होगा b स्क्वायर है और a मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर इंटू c स्क्वायर हो जाएगा। एंड फाइनली दिस इज log of 1 इक्वल्स टू 0। लॉग में बड़ी मजेदार सी बात यह है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में या तो आंसर 1 आता है या आंसर 0 आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने सीधा 1 या 0 ही आंसर लगाना है, बट अगर आपके पास टाइम कम हो और आपके पास इस तरह के एक्सप्रेशंस में क्वेश्चन हो तो आप 1 या 0 लगा के लगा सकते हैं। अगर तुक्का मारना ही पड़ा कभी ना, मतलब वर्स्ट कम वर्स्ट केसेस में अगर आपको गेस वर्क करना ही पड़ा तो आपको क्या करना चाहिए, आपको हमेशा क्वेश्चन को इस तरह से लेके बात करनी चाहिए कि आप उसको 1 या 0 देख के डिपेंडिंग अपॉन ऑप्शंस क्या है उसको आप लेके चल सकते हैं। जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अपॉन log bc टू द बेस ए
प्लस 1 log AC to the base B plus 1 plus 1 log AB to the base C plus 1। देखिए जी, हम सबसे पहले ना एक ही को यहाँ पे लेके चलेंगे। वी विल बी कंसिडरिंग ओनली वन एक्सप्रेशन आउट ऑफ ऑल दीज 3 और उसके हिसाब से हम बाकियों को का रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। हम इसको 1/log BC टू द बेस A plus 1 इसको लेके चलते हैं। दिस थिंग इज 1 क्या लिखा जा सकता है इसके लिए? इसको हम लिख सकते हैं 1 log BC अपॉन log A प्लस 1, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि log A to the base B can be written as log of A upon log of B। ये हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी थी और वही आइडेंटिटी हम यहाँ पे डायरेक्टली अब यूज कर रहे हैं। So this thing will become what? This thing will become, एलसीएम ले लेंगे तो बन जाएगा 1 log BC प्लस log A और डिनोमिनेटर वाला log ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा log A and finally we could write it as log of A upon log of ABC। तो ये हमारे पास किसकी बात आई? ये हमारे पास आई फर्स्ट एक्सप्रेशन की बात। नाउ आप यहाँ पे अगर इस चीज को ध्यान से अगर देखें तो हमारे पास क्या था? हमारे पास ये जो A था ना, A, ये हमारे पास ऊपर आ गया। कहाँ आ गया? न्यूमरेटर में आ गया यहाँ। और ये A और BC, यानी ये अब इधर BC है तो नीचे A है, यहाँ पे सिमिलरली AC है तो B है और AB है तो C है। मतलब ये तो हम डिनोमिनेटर में हमेशा A log ABC ही आएगा। ऊपर में क्या आएगा न्यूमरेटर में? जो यहाँ पे बेस में है B है तो इधर न्यूमरेटर में log B चला जाएगा, यहाँ C है तो न्यूमरेटर में log C चला जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? Therefore we can write it as directly now 1/log AC to the base B plus 1 is equals to, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस विल बी रिटन एज log of B upon log of ABC and similarly 1/log AB to the base C plus 1 is equals to log of C upon log of ABC। तो हमारे पास ये जो पूरी एक्सप्रेशन थी, नाउ ये जो हमने एक्सप्रेशन गिवन थी, ये पूरी एक्सप्रेशन अब क्या बन गई? वी गेट इट एज log of A upon log ABC plus log of B upon log ABC plus log of C upon log ABC। और जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर में तो हमारा log ABC ही रहेगा, यानी एलसीएम तो log ABC ही है। ऊपर न्यूमरेटर में बन जाएगा log A plus log B plus log C and finally this becomes log ABC upon log ABC and जब ये दोनों हम छोड़ दें so this gives us the answer as 1।
तो क्वेश्चन हमारे पास या तो आंसर 0 होगा या 1 होगा। इसी तरह से एक और करते हैं। Look at question number 29 also. So another one is question number 29. We have been given here 1 upon log xyz to the base xy plus log xyz to the base yz plus log 1 upon log zx। तो इसको अब मैं डायरेक्टली ना इस तरह से लिख सकता हूँ, log of xy upon log of xyz plus log of yz upon log of xyz plus log of zx upon this is log of xy plus log of yz plus log of zx whole divided by log of xyz, or this is log of xy into yz into zx upon log xyz and this will be written as log of x square y square z square upon log of xyz, and finally we get the answer as 2, because this thing is written as log whole square upon log xyz, and this is 2 log xyz upon log xyz। तो इस तरह से हम लोग इसको आंसर्स को बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस। देन एक क्वेश्चन है 31। हमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ root of 10 to the base root of 10 sorry log of root of 10 into root of 10 into root of 10 till infinity to the base 10। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, we take this, ये जो root 10 वाला पार्ट है, we will be considering this part, ये जो ये वाला पार्ट है रूट ऑफ 10, ये वाला पार्ट हम इस पार्ट को अलग से पिक करेंगे। पहले विल पिक अप दिस पर्टिकुलर पार्ट फर्स्ट, तो हम इसको नाम दे देते हैं x, लेट्स से x इज इक्वल टू। इस तरह के क्वेश्चन को आप हमेशा इसी तरह से देखेंगे। अब जब हमने इसको पूरे को x मान लिया
तो इस x में से अगर मैं एक पार्ट ये 1√10 छोड़ भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी अगेन x। मतलब अगर मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को छुपा दूं, छोड़ दूं, तो भी बाकी का पार्ट इंफिनिटी तक जा रहा है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू x। तो इस क्वेश्चन का मेन जो थीम है वो यही है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये 10 एज इट इज छोड़ देंगे, अलग कर देंगे, बाकी के पार्ट को हम फिर से x लिख लेंगे। यानी ये वाला जो पार्ट है √10 एंड ऑनवर्ड्स, ये दोबारा से x के बराबर ही है, दिस इज इक्वल्स टू x। क्योंकि इंफिनिटी में से अगर हम एक पार्ट अलग कर देंगे, एक पार्ट को छोड़ भी देंगे, तो इट वोंट मेक एनी डिफरेंस टू इट। अब जब हमने यहाँ पे पहुंचा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, रूट हटाएंगे, so it is x is equals to root of 10x, sorry, it should be x square is equals to 10x, x square minus 10x is equals to 0। अब यहाँ पे x minus 10 is equals to 0। कई लोग क्या करते हैं, यहीं पर ही स्क्वायर और x काट देते हैं, वैसा नहीं करना आपने। आपको एक x की वैल्यू मिलेगी 0 और एक x की वैल्यू मिलेगी 10, बट 0 हम लोग वैल्यू ले नहीं सकते बिकॉज log 0 का डिफाइन नहीं होता है, तो इसलिए हम 0 इसको नहीं कंसिडर कर सकते, हम इसको 10 कंसिडर करेंगे। तो ये x हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को लिया था, सो अब हमारे पास ये क्या बन गया, दिस बिकम्स log of 10 to the base 10 equals to 1। तो इस तरह से अगेन हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया फिर से, जिसमें आंसर फिर से 1 आ रहा है। ठीक है जी। अब कई बार क्वेश्चन हम लोगों को दिए जाते हैं जहां पे हम लोगों को वैल्यूज लगानी पड़ती हैं, जैसे हमने कल log 2 log 3 log 5 की वैल्यू सीखी थी, आज हम उसको यूज करेंगे। जैसे वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 35, हमारे पास गिवन है 35 में log of 2 to the base 10 is equals to 0.3010 and log of 3 to the base 10 is, ये हमें पता ही है, it is 0.4771। और ये हमें बोलता है फाइंड log of 7.2 to the base 100। ये हमें इसको वैल्यू फाइंड आउट करने को बोल रहा है, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। वी कुड राइट इट एज log of 7.2 अपॉन log of 100। अब जब इसका बेस हमारे पास गिवन नहीं, तो वो वी विल कंसीडर दैट बेस एज 10, तो हम खुद से लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास log of 72 अपॉन 10, डेसिमल का 10 नीचे आया, और डिनोमिनेटर में log of 100 to the base 10 will be written as 2। इसको हम लोग 2 लिख देंगे डायरेक्टली। Then this becomes log of 72 minus log of 10 whole divided by 2, और log of 72 को हम लिखेंगे log of 8 into 9 minus 1 upon 2। बस अब इसको हमने फैक्टराइज कर दिया, तो हम और आगे फर्दर फैक्टराइज करेंगे। दिस विल बी रिटन एज log of 8 plus log of 9 minus 1 upon 2, and this is log of 2 cube plus log of 3 square minus 1 whole divided by 2, and this becomes 3 log 2 plus 2 log 3 minus 1 whole divided by 2। तो आपके पास वैल्यू सारी पता है आपको, log 2 का वैल्यू पता है, log 3 का वैल्यू पता है,
You just have to put these values and you have to give us the answer. Give me the answer for that. Come on, note it down and give me the final answer for this particular one. No. अब हम लोग जो आगे सीखेंगे, that is a very important thing which we are going to learn is, that is characteristic and Mantissa. A very important thing, characteristics and Mantissa देखने से पहले हम लोग क्या देखेंगे, we'll see standard form of a number. स्टैंडर्ड फॉर्म आपने ऑलरेडी फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज किया हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, हम लोग किसी भी नंबर को 1 पॉइंट बी सी डी डैश 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 की शेप में लिखें तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द नंबर। फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है 2437, यू जस्ट हैव, अगर आपको डेसिमल लगाना होगा तो आप डेसिमल लगाएंगे इसके आगे, यहां से हमने इस डेसिमल को शिफ्ट करके 1 2 और 3 प्लेसेस पे लेके आना है, यानी डेसिमल से पहले सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए विदाउट चेंजिंग इट्स वैल्यू, तो इट विल बी 2.437 into 10 raised to power 3। सिमिलरली अगर मेरे पास एक नंबर है 573.6, ये वैल्यू है, हमारे पास एक नंबर है, तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आई हैव टू टेक इट हियर 2 प्लेसेस लेफ्ट में, सो इट विल बी रिटन एज, जितने प्लेसेस आप लेफ्ट में लेके आएंगे डेसिमल को उतने ही 10 की पावर आपको लिखनी होगी, मतलब उतने ही प्लेसेस पे आपको। सिमिलरली अगर यही बात हमारे पास डेसिमल इसके लेफ्ट साइड पे है, मतलब ये ऐसे 0.00234, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे डेसिमल को 1 2 and 3 प्लेसेस राइट में लेके आना है, so it will be written as 2.34 into 10 raised to power 3 प्लेसेस लाया तो -3, यानी अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं तो माइनस यूज करेंगे, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो प्लस यूज करेंगे, दिस इज वन थिंग। और ये जो पावर है हमारे पास 10 की, जो भी ये पावर आ रही है 10 की, फर्स्ट केस में इट इज 3, सेकंड केस में इट इज 2, थर्ड केस में इट इज -3, यही हमारा कैरेक्टरिस्टिक है। यानी अगर हम लोग देखें कि इन नटशेल कि इफ वी राइट A B C D E is equals to A point B C D E into 10 raised to power 4, for example ऐसे लिख दें तो कैरेक्टरिस्टिक इज 4। अगर हम लोग ऐसे देखें A B C D डैश डैश डैश, और आई टेक इट एज कि मैं इसको n प्लेसेस तक लेके जा रहा हूँ, A B C D E डैश, एंड इट इज 10 raised to power n, so I will consider this characteristic as n. So here characteristic is n.
So characteristic is actually the power of 10 when we write a number in the standard form. So this is characteristic. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. मैं अभी इसका आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं. हम सबको पता है कि log of 2 is equals to 0.3010. ये जो 3010 है, दिस पर्टिकुलर वैल्यू, ये हम बोलते हैं log की वैल्यू है, log 2 की वैल्यू है जब हम इसको log टेबल के हिसाब से चेक करते हैं. तो दिस इज वैल्यू ऑफ log 2. ठीक है, log टेबल में हम इसको चेक करते हैं. बट दिस वैल्यू इज नोन एज, एक्चुअली दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज मैंटिसा. इसको ही हम मैंटिसा बोलते हैं. अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है अब आप देखेंगे. सपोज मैं log ऑफ 200 का वैल्यू निकालना चाहूँ. आपको पता है log ऑफ 200 कैन बी रिटन एज log ऑफ 2 into 100. और log के अगर आइडेंटिटीज यूज करता हूँ तो दिस इज log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 100. यहाँ पर बेस 10 ही है. जब मैं बेस नहीं लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है कि वो बेस 10 ही है. log ऑफ 2 का वैल्यू हमें पता है 0.3010 और log ऑफ 100 इज 2. So this value will be 2.3010. Now let us understand कि जो हम लोग बात कर रहे हैं वो क्या है. ये बात जो है, जो ये वाला पर्टिकुलर पार्ट है, ये मैंटिसा है. दिस इज मैंटिसा, जो कि हमने 2 के केस में भी देखा. यही था 0.3010. और हमारे पास 200 के केस में भी 3010 ही है. मैंटिसा इज सेम. चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है ये 0 की जगह अब यहाँ पे 2 आ गया. अब इस बात को हम समझते हैं. ये हमारा है कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है, जब हमने 2 को देखा तो 2 कैन बी रिटन एज 2 into 10 raised to power 0. और जब हमने 200 को देखा तो इट इज 2 into 10 raised to power 2. अब यहाँ पे बिकॉज 10 की पावर 0 थी तो कैरेक्टरिस्टिक वाज 0. दैट इज व्हाई वी हैव रिटन 0 इन द log 2. यहाँ पे 10 की पावर 2 थी तो कैरेक्टरिस्टिक 2 आ गया. इसीलिए जब हमने log 200 निकाला तो आप ऑटोमेटिकली देख रहे हैं कि वो वैल्यू हमारे पास 2 बन रही है, कैरेक्टरिस्टिक 2 बन रहा है. इसका मतलब अगर मेरे पास 2000 की बात करूं तो इट इज 2 into 10 raised to power 3. और इस केस में अगर मुझे log ऑफ 2000 फाइंड आउट करना हो तो आई कैन डायरेक्टली राइट इट एज 3.3010, where 3010 is the mantissa and 3 is the characteristic. Very important thing to understand, right? अभी कैरेक्टरिस्टिक को लेके एक और मजेदार चीज है. कहता है कि इफ if the value of characteristic is, कैरेक्टरिस्टिक को मैं CH से डिनोट कर रहा हूं, इसको आप समझ दीजिएगा, is n, then number of digits in the number is n plus 1. चलिए इस बात को समझते हैं. देखें, जब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 0 था, यहां देखें तो वो नंबर में कितने डिजिट थे? ओनली 1 डिजिट. ठीक है, जब कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 था तो नंबर ऑफ डिजिट वाज 0 plus 1. जब कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 2 था, आप यहां देखें, द कैरेक्टरिस्टिक इज 2 एंड नंबर ऑफ डिजिट इज 2 plus 1, दैट इज 3. 200 में कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं. यहां देखें, जब कैरेक्टरिस्टिक इज 3, वी हैव सीन दैट एंड नंबर ऑफ डिजिट इज 2000 में 4 डिजिट्स है. तो हमारे पास यहाँ पे ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली है कि यार अगर हमारे पास ये दिस इज n plus 1, राइट?
अभी यहाँ पे अगर हम लोग देख के, अगर आप इसको देखें तो ये एज इट इज ही रहेगा। सिमिलरली अगर हम लोग नेगेटिव साइड से बात करें, नाउ जस्ट लुक एट द थिंग्स। सपोज अब मुझे फाइंड आउट करना है लॉग ऑफ 0.002। अब मैं ये फाइंड आउट करता हूँ। पहले मैं इसको कन्वेंशनल मेथड से यूज करता हूँ। इफ आई टेक इट एज log of 2/1000, ध्यान से देखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हम सीखने वाले हैं अभी। I will be writing it as log of 2/1000 and this is log of 2 minus log of 1000. This is 2 minus log of 2 का वैल्यू is 0.3010 minus 3। अब आप एक बात बड़े ध्यान से समझिएगा, ये जो मेंटिसा होता है ना, दिस मेंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। दैट मीन्स ये तो हमारे पास 0.3010 है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या मिला ये हमें -3 मिला। या तो मैं इसको ऐसे लिख दूं -2.6990, या तो मैं इसको ऐसे लिखूं, राइट, या तो मेरी ये वैल्यू को मैं इस तरह से लिख सकता हूं। मैंने क्या किया, 3010 को 0.3010 को 3 में से सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे मिला -2.6990। और मैं इस वैल्यू को और कैसे लिख सकता हूँ, मैं इस वैल्यू को लिख सकता हूँ, ये जो 3 है ना हमारे पास, ये 3 इज द कैरेक्टरिस्टिक। तो ये हमारे पास क्या जाएगा, 3 नेगेटिव की जगह हम इसको ऐसे लिखते हैं 3 बार 0.3010। ये चीज हमें बताती है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है दिस इज नेगेटिव बिकॉज मेंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो या तो वैल्यू हमारे पास इसको मानेंगे या हम इसको वैल्यू को मान के चलेंगे, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, यहां से हम लोग एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं। वो क्या सीखेंगे, नाउ व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि यहाँ पे ये हमने इसको -3.3010 क्यों नहीं लिखा। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है समझने वाली कि हमने इसको -3.3010 क्यों नहीं लिखा। वाई डिडंट वी राइट इट लाइक दिस। हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते बिकॉज ये -3.3010 को अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा ना, तो ये एक्सपेंड करके क्या बनेगा, ये एक्सपेंड करके बनेगा -3 माइनस 0.3010। लेकिन हमें पता है कि ये जो हमारे पास ये कभी भी माइनस में नहीं होता, ये मेंटिस हमेशा पॉजिटिव रहता है। दैट इज व्हाई वी कैन नॉट राइट इट लाइक दिस। सिमिलरली अगर मुझे इसको दूसरी तरह से देखना है तो मैं कैसे देखूंगा, मेरे पास वैल्यू थी फाइंड आउट करनी लॉग ऑफ 0.002 की। अब आपको पता है कि जब हम लोग इसका बात करेंगे तो हम इसका कैरेक्टरिस्टिक 1, 2 और 3 प्लेसेस हमें राइट में आना है। तो कैरेक्टरिस्टिक इज -3। कैरेक्टरिस्टिक इज, क्योंकि हम लोग 2 को क्या लिखेंगे, 2 × 10⁻³ कैरेक्टरिस्टिक इज -3, तो -3 को हम 3 एज इट इज लिखेंगे और 2 का मेंटिसा यूज करेंगे तो 0.3010। तो या तो हमारे पास ये वैल्यू हमेशा इस तरह से होगी, 3 बार का मतलब है कि कैरेक्टरिस्टिक इज नेगेटिव, या फिर इसने हमें यही वैल्यू क्या दी होगी -2.6990। यह भी हम लोगों ने पढ़ा। अब ये जो कई बार क्या होता है, कई बार हम लोगों के पास इस तरह की वैल्यू है तो हमें चेक करना है कि यार ये किस लॉग की वैल्यू है। तो किस लॉग की वैल्यू, अब इस बात को हम लोग बड़े ध्यान से समझना हमें कि किस लॉग की वैल्यू है। सबसे पहले हम इसको स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे, क्या लिखेंगे,
अब देखिए लॉग की वैल्यू निकालने के लिए हम लॉग टेबल यूज करते हैं, और अगर हमें कोई लॉग की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है तो हम उसको एक्चुअल नंबर को फाइंड आउट करने के लिए एंटी लॉग करते हैं। लेकिन यहाँ पे एंटी लॉग किसका फाइंड आउट करना है? जैसे अगर मेरे पास नंबर है 3.3010, जैसे हमने इस जगह पे किया, तो आपको पता है कि 3010 जो है किसका एंटी लॉग होगा 2, और 3 का मतलब है कि हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक 3 है, तो 2 × 10⁻³ लिख देंगे सिंपली। तो ये दिस विल गिव अस कि अगर मैं इसका एंटी लॉग लेता हूं, एंटी लॉग ऑफ 3010, अगर मैं ऐसे लेके चलता हूं 3.3010, तो ये हमें क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा मैंटिसा 3.3010 का होगा, तो वी विल राइट इट एज 2 × 10⁻³ एंड दिस विल गिव अस द फाइनल नंबर। लेकिन इस केस में हम इसको क्या करेंगे? जो हमने नेगेटिव नंबर लिया इसको हम लिखेंगे -2 -0.6990, हमने इसको स्प्लिट डाउन कर दिया। अब क्या करेंगे? इसमें हम -1 +1 करेंगे, -0.6990। ये जो +1 वाला पार्ट है ना, हम इसको अलग से ले लेंगे, और ये जो माइनस वाला पार्ट है इसको अलग से कर लेंगे। तो दिस बिकम्स व्हाट? हमने क्या किया? हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, सिर्फ -1 और +1 किया। ये -3 आ गया प्लस 0.3010। तो अब देखें हम यहाँ पे पहुंच गए, और इसका क्या है? इसका जब हम एंटी लॉग लेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा? 2, और कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास -3 है, तो वी विल राइट इट एज 2⁻³ -3। हम क्या लिखेंगे इसको? 2⁻³ एंड दिस विल गिव अस द फाइनल नंबर है 0.002। तो कहने का मतलब है यहां से हमें पता चलेगा कि भाई ये जो हमने लॉग की वैल्यू हम लोग यूज कर रहे हैं ये किसकी है? ये 0.002 का लॉग था, जिसको हम लोगों ने 2.6990 लिखा हुआ था। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट कि अगर हमें कभी वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ जाए, एंटी लॉग की जरूरत पड़ जाए। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज है, आपको इसकी वैल्यू या तो क्वेश्चन में गिवन होगी या आपको एग्जाम में लॉग टेबल मिलेगा, ऐसे वो आपसे कभी भी नहीं पूछेगा। तो यू हैव टू बी यू कैन से फ्री फ्रॉम ऑल दिस टेंशन कि यार लॉग की वैल्यूज कितनी याद रखनी है। नीड नॉट टू वरी। क्वेश्चन में हाँ 2, 3 और 5 की जरूर याद रखनी है, क्योंकि वो हमें हमेशा काम आती है। बाकी अगर आप नहीं भी लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन, इतना सारी जो बातें हम लोगों ने पढ़ी, हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक की बात की, मैंटिसा की बात की, ये क्यों किया? क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में इसके ऊपर डायरेक्टली पूछा जाता है। क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स find the number of digits in, let's say ये बोलता है 2⁻50। ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 2⁻50, तो हम इसको लिखते हैं that x is equals to 2⁻50, यानी 2 को 50 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो लॉग का एक बहुत बड़ा यूज हमें ये भी होता है कि हमें कैलकुलेशंस करने में थोड़ी सी आसानी देता है। तो हम इसको लिखेंगे log of x is equals to log of 2⁻50। we can write it as log of x is equals to 50 log 2। हम इसको लिखेंगे log of x is equals to 50 into 0.3010। सॉल्व करते हैं। 0, 5 1s are 5, 5 zeros are 0 and 5 3s are 15। तो हमें ये वैल्यू मिल गई 15.0500। नाउ अभी ये जो हमारे पास 15 है, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक। So if characteristic is 15,
तो नंबर ऑफ डिजिट इज वन मोर देन दैट, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 raised to power 50 is 16. तो दिस इज द आंसर फॉर इट। तो ये जो हम लोगों ने इतनी ज्यादा डिस्कशन की, ये इस तरह के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं। So go through this, especially the characteristic and Mantissa वाला पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। इसके ऊपर क्वेश्चन थोड़े से टेक्निकल टाइप के रहते हैं, तो इसलिए ये आना चाहिए। और इसको अच्छे से करें। लॉगरिथम आपने अपनी 11th-12th में नहीं पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये आप 2 लेक्चर्स पढ़ेंगे तो दैट इज गोइंग टू मेक द थिंग्स क्लियर टू यू। तो नेक्स्ट, इससे आगे नेक्स्ट टाइम चलते हैं। आज इतने रखेंगे, विदा लेते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।